السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس پارٹ 2 ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں کلیئرلی اور ڈیٹیل میں پتہ چلنے والی ہیں جو کہ ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے بارے میں ہیں، جس میں موجود ہیں کہ یہ کب اور کون سے سن میں بنا، کون کون لوگ اس میں شامل تھے، ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہے، اس کے آفیسز کہاں کہاں پاکستان میں موجود ہیں، کتنے ہیں، اور اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے کوئی گائیڈنس چاہیے ہو ہیومن رائٹ کے حوالے سے یا کسی کیس کے بارے میں ان سے کوئی ہیلپ لینی ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اور آج تک ابھی تک کتنے ہیومن رائٹ کیسز پاکستان میں رپورٹ ہو چکے ہیں ہیومن رائٹ کمیشن کے تھرو۔ آئیے جانتے ہیں قاضی خضر حبیب صاحب سے، جو کہ وائس چیئر پرسن سندھ ہیں اور ایک بہترین صحافی بھی۔ تھریٹس کی تعداد تو سینکڑوں میں ہے کہ جو اسی طرح میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ 22 سال سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی نے باندھ کے نہیں رکھا ہوا، ہم اپنی مرضی اپنی رضا سے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بنانے والوں میں سب سے پہلے جسٹس دارا پٹیل ہیں، آسما جہانگیر صاحبہ ہیں، اس میں ڈاکٹر مبشر حسن ہیں، ڈاکٹر بیدی حسن ہیں، عالیہ رحمان صاحب ہیں، حسین نقی صاحب ہیں۔ تو اس طرح آپ کے پورے ملک میں سے بہت سارے لوگ مل کر بیٹھے، اور لیڈنگ پوزیشن پہ اگر ہم کہیں تو آسما جہانگیر اور جسٹس دارا پٹیل تھے اور عالیہ رحمان صاحب تھے، اور لاہور سے ڈاکٹر مبشر حسن تھے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگوں نے مل کر اس آرگنائزیشن کو بنایا، اور پھر اس کا یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ تو سر پورے پاکستان میں کون کون سی ڈیز کے اندر کون سے شہر ہیں کہ جہاں پر آپ کا یہ چین پھیلا ہوا ہے سر؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ 1987 میں وجود میں آئی، اور اس کے بعد اس کا جو مرکزی دفتر ہے وہ ایوان جمہور کے نام سے وہ ہے لاہور میں۔ یعنی کہ آپ سمجھ لیں ہیڈ آفس ہمارا جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا وہ ہے لاہور میں، اور اس کے بعد اس کے چیپٹر آفیسز ہیں چاروں صوبوں میں۔ جو چاروں صوبے ہیں، جیسے سندھ کا چیپٹر آفس جہاں آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں ہے، اسی طرح آپ جو ہے لاہور میں اس کا مرکزی آفس ہے، یعنی کہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے ایوان جمہور کے نام سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ ان کے چاروں صوبوں میں جو ہے وہ چیپٹر آفیسز بھی ہیں۔ چاروں صوبوں میں پشاور میں ہے خیبر پختونخوا کا، کوئٹہ میں ہے بلوچستان کا، اسی طرح سندھ کا جو ہے وہ یہ کراچی میں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ٹاسک فورس کے آفیسز ہیں۔ ٹاسک فورس کے آفیسز ہیں وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد ٹاسک فورس کے نام سے۔ اسی طرح ہمارا جو ہے وہ ملتان میں ہے، ملتان ٹاسک فورس کے نام سے۔ اسی طرح جو ہے وہ تربت میں ہے، تربت ٹاسک فورس کے نام سے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں ٹاسک فورس کے نام سے ہے۔ تو یوں ہمارے یہ 8 آفیسز ہو گئے، اور ایک ہمارا جو ہے اسلام آباد میں آفس ہے۔ تو اس طرح یہ 9 کے قریب ہمارے آفیسز ہیں جو پورے پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ کے ہاں کوئی لمیٹیشن ہے یا کسی بھی نسل، کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب کا شخص آ کے آپ کو رپورٹ کر سکتا ہے، اور آپ ان کے لیے جو ہے وہ قانونی اور عدالتی جو راہیں ہوتی ہے وہ آپ ان کے لیے ہموار کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو مذہب کی جو آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور تقسیم کی بات کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس پہ یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی تقسیم پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں دنیا میں وہ انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں۔ آپ اگر جیسے بھائی صاحب نے بھی ذکر کیا آپ کو UPHR کا، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا، اس میں آپ پڑھیں کہیں بھی مرد عورت نہیں لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے تمام انسان۔ اس کا مطلب ہے مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، اسی طرح جو ہے وہ ٹرانسجینڈر بھی انسان ہے۔ تو تمام انسان برابر ہیں۔ تو یہاں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگ آتے ہیں، بہت سارے جو کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں اپنی کمپلینس لے کر، اور دیگر تمام کے تمام جو مختلف قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو بلا تفصیل جو ہے وہ ان کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کام کرتی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سے مذہب سے ہے یا کس قوم سے تعلق ہے اس کا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ انسانی حقوق کی کس قسم کی وائلیشن ہوئی ہے۔ تو ہم اپنی وسعت کے مطابق جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اس میں کام کرتی ہے، اور ان کو
बताती है, रास्ते दिखाती है कि ये आपका हक है, ये कानूनी चाराजोई है जो आप कर सकते हैं। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने दोस्त वकला के ज़रिए उनको कानूनी मदद भी फराहम करती है और उनके साथ खड़ी भी होती है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है जो उनके आइनी हक हैं जिससे। अब तक इब्तिदा से लेकर कितने केसेस रिपोर्ट हुए और कितने ऐसे मजलूम लोग थे कि जिनके आप दस्तो बाजू बने और वो कामयाब व कामरान हुए? देखिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, आप ज़रूरत है इस चीज़ को जानने की। मिसाल के तौर पे मैंने जब बात की 1987 से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इब्तिदा से ही एक डॉक्यूमेंट यानी किताबी शक्ल में बनाना शुरू किया। उसका नाम था स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल। ये हर साल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी रिपोर्ट जारी करता है और ये 1987 से अब तक आप हिसाब लगा लीजिए कुछ 24 साल हो चुके हैं। इन 24 सालों में यानी कि 24 से 25 साल, इन 24-25 सालों में आपको ये 25 किताबें यहाँ नज़र आएंगी। यहाँ इस अलमारी में अगर आपको नज़र आ रही हूँ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, तो ये इस पूरे मुल्क में के चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल क्या रही, औरतों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, तालीम के हवाले से, सियासत के हवाले से, कवानीन के हवाले से, दीगर हर तरह के हवाले से वो इस किताब में आपको मिल जाएगी कि पाकिस्तान की सूरत हाल गुज़िश्ता पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या रही। जिस तरह अभी जो गुजरा साल है 2020 का, वो आपको 2020 की रिपोर्ट में मिल जाएगी। ये उर्दू में और इंग्लिश में आपको हमारे यहाँ दस्तयाब होंगे। दूसरा आपके सामने इस वक्त जोधे हक रखा हुआ है। ये जोधे हक भी इब्तदा से ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको प्रिंट करवाना शुरू किया। तो मंथली बेसिस पे ये जोधे हक आता है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की मुख्तलिफ अजला में जो हमारे नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ अजला में जो हमारे कोर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कोर ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं, मुख्तलिफ अजला में जो है वो जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो लोग रिपोर्ट करते हैं और इस रिसाले में वो शाया होते हैं मंथली बेसिस पे। इसी तरह जो बड़े केसेस होते हैं पाकिस्तान भर में, उसकी फैक्ट फाइंडिंग करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी फैक्ट फाइंडिंग करता है तो वो फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम पूरी बनाई जाती है, जिसमें ख़वातीन भी होते हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, फिर उस वाक़े को जानने वाले लोग भी होते हैं, माहिरीन भी होते हैं। तो मुख्तलिफ जगह से वो लोग लेकर टीम बनाई जाती है और उस पर उस वाक़े की फिर फैक्ट फाइंडिंग की जाती है। मिसाल के तौर पे गडानी में जो जहाज़ में आग लगी और उसमें जो है इंसानी जानों का ज़िया हुआ। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब आपसे जिक्र कर रहे थे कि बल्दिया टाउन की फैक्ट्री जो थी, जिसमें 260-62 लोग जो हैं वो उसमें हलाक हुए मजदूर, उसकी फैक्ट फाइंडिंग की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसी तरह जो ऑपरेशन था, पुलिस ऑपरेशन, उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग बहुत ज़्यादा हुई, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी फैक्ट फाइंडिंग की। तो कोई भी जेल विजिट्स होते हैं, बहुत सारे तालीमी इदारों की फैक्ट फाइंडिंग हम लोग करते हैं। तो इस तरह ये सैकड़ों फैक्ट फाइंडिंग्स हैं जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक कर चुकी है और उन सैकड़ों फैक्ट फाइंडिंग्स की किताबी शक्ल में भी आपको दस्तयाब होंगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो शायाशुदा रिपोर्ट्स, उनकी जो जायज़ा रिपोर्ट्स और उनकी मुख्तलिफ रसाइल, उनकी तादाद अगर हम देखें तो ये सैकड़ों में हुए हैं। और हमारा एक और बहुत ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त काम है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम दफातर में आने वाली जो अखबारात हैं उनकी कटिंग करते हैं कि वो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो शाया हो रही हैं, किस किस्म की इंसानी हकूक़ की वायलेशन है जो अखबारात जो है वो उसमें उसको कैसी जगह देते हैं। तो वो फिर हम सब की सब जमा कर रहे थे। तो गुज़िश्ता 20 साल से जो हमारे पास वो पेपर्स जमा हो रहे थे, आप में से अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो सबसे बड़ी रिसर्च तो वो ये कर सकता है कि उसके पास 25 साल का डाटा मौजूद है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इंसानी हकूक़ की सूरत हाल, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल नाम की सालाना जो रिपोर्ट आती है, उस सूरत में आप लोगों के लिए 25 साल का डाटा दस्तयाब है इस मुल्क का। कि आप तालीम पे रिसर्च करना चाहें, आप जो है किसी भी मौजू पे रिसर्च करना चाहें तो उसमें आपको तमाम मौज़ूआत मिलेंगे। मेरा कहने का मकसद एक और भी था कि वो जो अखबारात की कटिंग करते रहे उसको अब डिजिटलाइज कर रहा है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, उस वेब एड्रेस पे आप जाइए, आपको जितनी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट्स हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगी। आपको ये जो जोधे हक आपके सामने रखा हुआ है, जैसे आप जहरी हक कहें, ये भी आपको वहाँ पर मिलेगा। इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दीगर फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने जिक्र किया सैकड़ों हैं, वो सारी की सारी आपको उस वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। इसी तरह वो जो पेपर्स मैं कह रहा था कि अखबारात का कटिंग थी, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समझा कि इसको डिजिटलाइज़ किया जाए, तो वो डिजिटलाइज़ कर रहे थे। तो मुझे जहाँ तक अब पता चला है वो 60 लाख पेपर हो चुके हैं कि जो वो उसको कंप्यूटराइज़ कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा काम है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और हमारे अकाबरीन का, हमसे पहले काम करने वाले
लोगों का, मसलन आसमा जहांगीर का ये डिसीजन जो मैंने अभी आपने पूछा था, सवाल किया था, ये जस्टिस दारा पटेल साहब थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अभी इस वक्त जो है हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो हिना जिलानी साहिबा हैं, फिर को चेयरपर्सन हमारे असद इकबाल भट्ट साहब हैं। इसी तरह हमारे चारों सूबों में जो है वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं और चारों सूबों को वाइस चेयरपर्सन देखते हैं। फिर इसी तरह चैप्टर ऑफिसर्स हैं। तो ये दो अलग-अलग सिलसिले हैं। एक वो हैं कि जो हमारे पेड एम्प्लॉइज़ हैं जिनको सैलरी लेते हैं, और वो सारे के सारे जो हैं हमारे जो हैं वो स्टाफ मेंबर्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन चंद इदारों में शामिल होता है कि जिसने अपनी इब्तदा से आज तक ड्यू इलेक्शंस जो हैं वो अपने हर 3 साल के बाद अपने इलेक्शंस करवाए, और वो जमहूरी अंदाज में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स जो चारों सूबों में हैं, कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, वो सारे के सारे उस इलेक्शन में वोट डालते हैं और अपनी काउंसिल को मुंतखब करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की काउंसिल जो है वो 32 लोगों पर मुश्तमिल होती है। फिर वो 32 लोग जो जीतते हैं, जिनके ज़्यादा वोट होते हैं, वो 32 ऊपर से वो जीत जाते हैं, और वो 32 लोग अपनी कैबिनेट बनाते हैं, यानी कि अपनी जो है ऑफिस बेरर जो है मुंतखब करते हैं। उनको इंतखाब करते हैं अपने चेयरपर्सन का, वो इंतखाब करते हैं अपने को चेयरपर्सन का, वो इंतखाब करते हैं अपने खाजिन का, और 4 वाइस चेयरपर्सन। इसके अलावा अगर कहीं कोई जालिम शख्स कहीं जबर तशद्दुद कर रहा होता है, जुल्म कर रहा होता है, तो वो मजलूम अशखास किस तरह आपके पास आकर और किन किन मराहिल से गुजर कर आपको रिपोर्ट करते हैं? देखिए, मुख्तलिफ मुझे भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते, वॉलंटियरली काम करते हुए कोई 22 साल हो गए। मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बना 1998 या 1999 में था। तो इस सारे अरसे में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त से मैं इन लोगों के पास आ रहा हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। आज भी मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, और फ़िलहाल मैं फ्रीलांस करता हूँ। जियो मैंने छोड़ दिया, मैं फ्रीलांस करता हूँ, लेकिन आज भी मैं इनके साथ जो है वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। इस पूरे अरसे में जो मैंने देखा, बहुत सारे सूरत हाल बन सकती हैं कि विक्टिम यहाँ तक पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को डायरेक्टली पता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करता है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली आ जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के तवस्सुत से आते हैं, बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर जो काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग काम कर रहे हैं, उनके बताने भी आ जाते हैं। अच्छा, फिर बहुत सारे विक्टिम्स का पता ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अखबारात जो हमारे यहाँ कटिंग होती हैं उसके ज़रिए पता चलता है। फिर इसी तरह यहाँ कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको आने से पहले कोई इजाज़त लेनी पड़ेगी या कोई सिलसिला होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। आप दरवाज़ा नॉक करें, अंदर आ जाएँ, अंदर आइए। हमारे फील्ड ऑफिसर अब्दुल भाई साहब, कंप्लेन ऑफिसर यहाँ मौजूद होते हैं, इनको कंप्लेन की जा सकती है। हमारे यहाँ निदा तनवीर हैं कराची में, उनको कंप्लेन की जा सकती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस का अगर कोई केस है वो निदा देख रही होती हैं। इसी तरह जनरली जो हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं वो कई साहब देख रहे होते हैं। इसी तरह हमारे चारों सूबों में जो चैप्टर ऑफिसर्स हैं वहाँ कंप्लेन ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, लीगल स्टाफ के साथ साथ, जो सिर्फ कंप्लेंट्स देख रहे होते हैं। इसी तरह वहाँ पर GBV एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस को भी देखने के लिए अलहदा से डेस्क बनाया हुआ है, यानी कि ख़वातीन के कोई केसेस आ जाते हैं, बच्चों पे कोई केस होता है इस तरह का, या ट्रांसजेंडर्स के हवाले से अगर कोई केस आता है तो वो हमारा GBV डेस्क जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो डेस्क है वो देख रहा होता है। वरना जनरल कंप्लेंट्स जो है अब्दुल भाई साहब सिंध में देख रहे हैं, कराची ऑफिस में देख रहे हैं। इसी तरह चारों ऑफिस में हमारे, बल्कि 9 ऑफिस जो हमारे 10 ऑफिस जो मैंने आपको गिनवाए, उन तमाम ऑफिस में इसी तरह कंप्लेन ऑफिसर्स और कंप्लेन डेस्क काम कर रही हैं। वहाँ पर आके वो कंप्लेन कर सकता है विक्टिम, या विक्टिम का कोई भी जो है वो दोस्त या उसका कोई भाई या कोई भी आ सकता है, वो उसकी कंप्लेन कर सकता है। और बहुत सिंपल है कि वो आए और अपनी बात बताए। अगर वो लिख सकता है तो खुद एप्लीकेशन लिख ले, अगर वो नहीं लिख सकता तो कोई भी हमारे यहाँ वॉलंटियर उसकी एप्लीकेशन लिखकर उससे दस्तखत करवा लेते हैं, और फिर उस प्रोसेस को देखते हैं। जैसे कोई कानूनी मदद की ज़रूरत है तो वकला की जानिब उसे रेफ़र करते हैं और उसे वकील देते हैं। अगर उसका कोई और मसला है किसी डिपार्टमेंट के साथ, किसी और के साथ, तो फिर उस सिलसिले में ख़त लिखे जाते हैं। बहुत सारे दीगर टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं और हक हासिल करने के लिए। जो बासलाहियत नौजवान हैं वो अगर आपका हिस्सा बनना चाहें तो मेंबरशिप के लिए आपके यहाँ कौन से उसूल या कौन से कवायद होते हैं कि जो आपको चाहिए होते हैं? अच्छा, देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं 22 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर मैं उस यूनिवर्सिटी में था, इसका मतलब है मैं भी नौजवान था, सिटी से यहाँ पर आना शुरू किया। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस है। आसमा जहांगीर आज हमारे दरमियान नहीं रही, लेकिन ये काम चल रहा है। जस्टिस दारा पटेल हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन ये काम चल रहा है। आइया रहमान हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन ये काम चल रहा है। ये काम यही नौजवान हैं जो इस काम को चलाते चलाते खुद उन पोजीशंस पे आ जाते हैं जिन पोजीशंस पे आज ये लोग मौजूद हैं। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, कल आप में से कोई नौजवान इस पोजीशन पे होगा। आज जो हम काम कर रहे हैं आप हमारे साथ मिलकर कर रहे होंगे, और कुछ ही अरसे में आप
बासलाहियत जो दोस्त हैं वो आगे आ जाएंगे और वो काम करेंगे। मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके जो है हज़ारों मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसा मैंने आपको बताया कि वो जनरल बॉडी कहलाती है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और वो हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और हर साल एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें तमाम मेंबर्स को ख़त लिखा जाता है, गुड स्टैंडिंग मेंबर्स को, कि आप आइए, आप कोई अमेंडमेंट है, कोई बात है, कोई तकलीफ है, कोई कमीशन के हवाले से, तो आप उसमें, ये बहुत ही जमहूरी तरीके से चलने वाला एक इदारा है, जिसमें आपको मैं दोबारा बताऊं कि एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो हर साल होती है। फिर वो AGM जो है, यानी कि वो जो मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, वो अपनी काउंसिल मुंतखब करते हैं, फिर वो काउंसिल अपने ऑफिस बेरर्स मुंतखब करती है। तो एक साइड है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वॉलंटियर्स, मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स और ऑफिस बेरर्स, यानी कि सारे के सारा वॉलंटियर काम है, चेयरपर्सन तक, यानी आसमा जहांगीर भी वॉलंटियर काम कर रही थी यहाँ पर एज ए चेयरपर्सन, और एक मेंबर भी वॉलंटियर काम कर रहा होता है जब वो काम कर रहा होता है। इसी तरह दूसरी साइड मैंने आपको कहा कि ये सारे ऑफिस रन करने के लिए हमारे जो हैं वो पेड एम्प्लॉयज़ हैं, और हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं वो पेड हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और ये जो साइड है ये पॉलिसीज़ बनाती है। तो हर नौजवान जो है, जो भी 18 साल से ज़्यादा उम्र का है, वो इसका मेंबर बन सकता है। हमारे यहाँ बहुत आसान है मेंबरशिप। आप जो है इसकी जो है वो मेंबरशिप फॉर्म लीजिए और मेंबरशिप फॉर्म फिल करें। कोई भी गुड स्टैंडिंग 2 मेंबर जो हैं, एक फर्स्ट करे आपको और एक सेकंड करे, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। ठीक है सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपकी लाइब्रेरी का विज़िट करेंगे, जो रिपोर्ट्स अब तक। ह्यूमन राइट कमीशन को और कौन से मसाइल का सामना खुद करना पड़ता है, और उस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करते आए हैं? बहुत सारे मसाइल होते हैं। देखें, एक चीज़ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम बताएं कि इस पूरे मुल्क में जो है वो थ्रेट्स तो सब लोगों को हैं, फिर गायब भी सारे लोग होते हैं, तो हमारे भी बहुत सारे लोग जाते हैं। इसी तरह हमारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथी हैं, इस सारी स्ट्रगल के दौरान हमारे कोई 7 के करीब साथी जो हैं वो शहीद हुए, यानी कि उनको मुख्तलिफ लोगों ने, इदारों ने थ्रेट्स दी, और थ्रेट्स की तादाद तो सैकड़ों में है कि जो हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को मिलती हैं, और वो कंप्लेंट्स फिर हमारे पास ही आती हैं। मुझ समेत बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको कंप्लेंट, जो थ्रेट्स आई, और हम लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ उसको डिस्कस किया। आज हम खुद उस पोजीशन पे बैठे हैं कि दोस्त में वो कंप्लेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं कि जी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने आपसे कहा कि मेरे दोस्त जो हैं बलूचिस्तान से, हमारे फुज़दार से बहुत प्यारे साथी थे, हमारे कोर ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे, हमारे मेंबर थे, और डिस्ट्रिक्ट फुज़दार के हमारे वो कोर ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे नईम साबिर। उनकी दोनों आंखों के दरमियान गोली मारी गई, लेकिन हमारे दोस्तों ने काम को जारी रखा। और इसी तरह हमारे जो है साहिबी गाइड से ईदू, हमारे बहुत प्यारे दोस्त थे, उनको कुछ महीने गायब रखा गया, और उसके बाद उनकी मौतशुदा लाश जो है वो हमें मिली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से हमारे जो है फाटा से ज़कीफ आफरीदी हैं, जिनको उस्ताद थे, वो टीचर थे, अपने स्कूल जाते हुए उन्हें रास्ते में गोली मार दी गई। और इसी तरह अगर आपने मुल्तान के एक एडवोकेट राशिद रहमान का सुना हो कि राशिद रहमान जो हैं उन्हें जो है उनके ऑफिस में पहले उनको कोर्ट में उनको थ्रेट्स दी गई कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, अगली पेशी में तुम नहीं आ सकोगे। तो राशिद रहमान जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठे थे, उनके ऑफिस में आके उन्हें गोलियां मार दी गई। तो जिस तरह बेटा आपने पूछा कि आप लोगों को जो कंप्लेंट्स होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमने तो अपने 6 से 7 साथी गंवाए हैं। इसी तरह हमारे काउंसिल मेंबर हैं अख्तर बलोच साहब, हमारे काउंसिल मेंबर हैं सईद बलोच साहब। ये दोनों जो हैं जबरी गायब किए गए, और जो है मुख्तलिफ इदारों ने इन्हें उठाया और लेकर गए, बहरहाल ये वापस आ गए। और बहुत सारे इस तरह के थ्रेट्स हमारे भी साथियों को मिलते हैं। उसका वही वाला प्रोसीजर होता है कि जो एक आम आदमी के लिए होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके लिए भी काम करता है, अपने डिफेंडर्स के लिए भी काम करता है। पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जब भी किसी जगह हम जाते हैं तो अपने सीनियर्स को बता के जाते हैं कि उन्हें पता हो कि हम किसी कंप्लेंट पे जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं। एक से ज़्यादा साथी जाते हैं ताकि जो है वो पता हो अगर कोई हादसा या कोई मामला हो। इसी तरह चीज़ों को जल्द से जल्द रिपोर्ट करें। आप लोग भी जब मीडिया के हैं, कल को आप अपने प्रोफेशन में आएंगे तो आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, खबर वो है जो खबर कर दी जाए। जब खबर आप रोक के रखेंगे वो आपकी जान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन आप बड़ी से बड़ी खबर जो है वो आप शाया कर दें तो आपकी ज़िंदगी बच भी सकती है और आप मज़ीद काम भी कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त वो जिनके हवाले से वो खबर होती है, जब वो नशर हो जाती है तो वो भी बैकफुट पे आ जाते हैं। आप देखिए आपके मुल्क में आपके सहाफ़ियों ने कितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं जो शाया कर दी हैं,
نشر کر دی ہیں اور اس کے بعد وہ سیف رہے. اور بہت سے ایسے صحافی کہ جن کے پاس بہت ساری معلومات تھی اور وہ دریا اور ندی میں سے ان کی لاشیں ملی ہیں. تو یہ ملک جو ہے وہ بہت مشکل ہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے لیے. یہ ملک بہت مشکل ہے صحافیوں کے لیے. یہ جو پیشہ آپ نے اختیار کیا ہے زبردستی کسی نے آپ کو نہیں اختیار کرنے کو کہا. اسی طرح میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ 22 سال سے ہم یہاں کام کر رہے ہیں تو ہمیں کسی نے باندھ کے نہیں رکھا ہوا. ہم اپنی مرضی اپنی رضا سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.